Okay. A very good morning to one and all. I, Meenakshi, heartily welcome all of you to this inaugural program of the seminar on production and use of green hydrogen and green ammonia in process industry, organized by Indian Institute of Chemical Engineers and Department of Chemical Engineering, IIT-Delhi, in association with Fertiliser Association of India, Delhi. Light symbolizes knowledge and divinity. It not only dispels darkness, but also illuminates our souls. I request our esteemed chief guest, Dr. Mansukh Mandaviya sir, and our distinguished guest, Shri Bhagwanth Khuba sir, and all the dignitaries to kindle the auspicious lamp to embark on today's proceedings. Thank you very much, sir. I request all of you to please keep your phone on silent mode. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. On this momentous occasion, it is our proud privilege and fortune to welcome our Honorable Chief Guest, Dr. Mansukh Mandaviya sir, Honorable Minister of Chemicals and Fertilizer and Health and Family Welfare, Government of India, and Shri Bhagwanth Khuba sir, Honorable Minister of State for Chemicals and Fertilizer, New and Renewable Energy, Government of India. Thank you, sir. We are immensely honored by your gracious presence. Thank you. I also welcome Mr. K.S. Raju sir, Chairman, Fertilizers Association of India, Delhi, Dr. S. Nand, Chairman, Indian Institute of Chemical Engineers, Northern Regional Center, and Professor Ashok Kumar Ganguly sir, Officiating Director, IIT Delhi. Thank you so much for your kind presence, sir. Flowers are the bounty of nature, which express humility and tenderness of human emotions. They reflect both warmth and welcome. I request our Honorable Chief Guest, Dr. Mansukh Mandaviya sir, to accept the bouquet as an expression of our affection and reverence. Welcome, sir. Now I request our distinguished guest, Shri Bhagwanth Khuba sir, to kindly accept the bouquet. Thank you so much for coming, sir. I also take this opportunity to accord a warm and cordial welcome to all the delegates who have come from far and wide to attend this seminar. We all are indeed delighted and honored by your presence. Thank you for coming. A true welcome is never complete without warm words and warmer gestures. I request our Honorable Director, Professor Ashok Kumar Ganguly sir, to accord a formal welcome to the dignitaries. Please, sir. I welcome our Honorable Minister, Mansukh Mandaviya ji, and welcome, who is currently the Minister of Chemical Fertilizers as well as the Ministry of Health and Family Welfare. I also welcome Shri Bhagwanth Khuba, Minister of State, Ministry of Chemicals and Fertilizers and
Ministry of New and Renewable Energy, Government of India. It's a great pleasure for me to invite them to our campus. I also invite all the office bearers of Indian Institute of Chemical Engineering and the Fertilizer Association of India, especially Shri K.S. Raju, Chairman, FAI, and many other dignitaries, including Dr. S. Nand, Chairman and additional DGFAI. I wish to say a few words that this topic of green hydrogen is the national priority, and also it's a global mission. As all of you know, of course, I was thinking when I was coming and reading green hydrogen, what will a school student think? We teach in class, hydrogen is colorless. The point is that now you have not only green, you have blue hydrogen, you have gray hydrogen, you have pink hydrogen, and you have yellow hydrogen, right? So there are so many types of hydrogen depending on the qualities of the hydrogen. It's like a golden boy is not made of gold, but he has qualities of gold, you know. So that's I was thinking, what is an example I'll give to a school student? What is green hydrogen and how to explain that? So, you know, there is so much going on in the world and in different top institutions in the world and in the government policies and administration. So I really want to thank the Department of Chemical Engineering for bringing this great meeting to IIT Delhi with experts in different branches of hydrogen storage, hydrogen generation, and including manufacturing of ammonia using green processes. So there is so much to do, and you know, many of our industries are now taking up. Here there are Reliance and Adani are going to put in a lot of money on green hydrogen. Internationally, you know, the Spanish company, I think Iberdrola is a 20-year-old company doing alternate hydrogen, including wind power, and put in a lot of efforts in green hydrogen. There are many companies in Norway, etc., and some of them with which I think some of our faculty at IIT are also interacting. So I believe this meeting will be a great meeting. Great molecules, you know, if you tell me two molecules from our basic chemistry, you know, water and ammonia. You know, water, if you split, you get hydrogen, which can fuel the world, oxygen, which fuels life, and ammonia, which gives fertilizers, that means food. So ammonia and water, if you know how to handle, world's problems will be solved. But you have to handle it in a green way. We know water splitting using, but it should not produce carbon or a carbon footprint. And that's the topic of interest in this meeting. So I wish you all great success. And again, welcome all the key members on the dais and those dignitaries in our midst today. And I met a joint secretary, and her son was an alumni from IIT Delhi. And there are several others here. And all the participants and the speakers. I believe there are many speakers who are going to join online, some virtual, some live. And I thank them for taking the time out for this prestigious meeting. Thank you. Welcome to IIT Delhi. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you so much for your encouraging words. I now request our honorable guest, Mr. K.S. Raju, sir, Chairman, Fertilizer Association of India, to please come on dais and say a few words. Please, sir. Thank you. A very good morning to all of you, and a very warm welcome to our honorable chief guest, Dr. Mansukh Mandaviya ji, who is the Honorable Minister for Chemicals and Fertilizers and Health and Family Welfare, Government of India, and our dear Minister, the Honorable Bhagwanth Khuba ji, the Minister of State for Chemicals and Fertilizers, and also the Minister of State for New and Renewable Energy, Government of India. Dr. Ganguly, the officiating director of IIT, Dr. Saroha, the organizing secretary and head of the Department of Chemical Engineering, Joint Secretary, Dr. Galot,
our new Director General of FAI, Mr. Arvind Chaudhary, and all the dignitaries and the participants of this seminar. From the perspective of Fertilizer Association of India, we are very excited and we are looking forward to participating in the whole process of developing the new hydrogen and the new ammonia economy. Because we know the planet is going through a lot of stress, and the whole world, everybody is talking about the stress and need to sustain the global, sustain the long-term sustainability. And our Honorable Prime Minister has declared that in the very coming future, we as a country shall be a green economy. And we are so happy to see this dialogue is happening in various forums within the government. And I'm so happy that we, the technocrats and all the stakeholders, are meeting today and tomorrow to discuss the possibilities of producing hydrogen economically, using hydrogen, and also using ammonia. For a long time, the industry has been used to old practices, but the world is changing so rapidly that we as industry should take the initiative, in fact, be the leaders of change from our perspective, so that we can all work together and evolve sustainable thing. And just imagine hydrogen with the most available element in the whole universe. It's been lying there and we've been using everything else but that. And hopefully all our dialogues will lead to an early resolution of the economics, the technology, the sustainability, the modeling, so that we, the industry, can adopt it as quickly as possible. And we're so happy that our chief guest, Dr. Mansukh Mandaviya ji, and also Mr. Bhagwanth Khuba ji, are here to lend their support to this dialogue. But they are driving the industry as well to bring about major changes from the Government of India's perspective. And we're here to work together with the governments. So thank you very much for this wonderful opportunity this forum has given to all of us. We wish the seminar a great success and look forward to good recommendations emerging from this deliberations. Thank you very much. Thank you, sir. I now request Shri Bhagwanth Khuba, sir, Honorable Minister of State for Chemical and Fertilizers, New and Renewable Energy, Government of India, to please come on the dais and say a few words. Please, sir. Seminar on use of hydrogen green and green ammonia in process industry. Indian Institute of Chemical Engineering, IIT-Delhi, Fertilizer Association of India की संयुक्त आश्रय में आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर सेमिनार ने आयोजित किया है। आपको सबसे पहला मैं अभिनंदन और बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम का उद्घाटक माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, मंच पर उपस्थित माननीय के.एस. राजू जी, प्रोफेसर ए.के. गंगुली जी, प्रोफेसर ए.के. सरोहा जी और इस सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवर और माध्यम के मित्रों, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 15 अगस्त 2021 को लाल किले से मिशन हाइड्रोजन के रूप में देश ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के साथ साथ उसका उपयोगिता की दोनों को दिशा दिया है। तो उस दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आज ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लागत काफी ज्यादा होगा, लेकिन पिछला महीना हमारा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर का एक डेलीगेशन हम लोग जर्मनी गए थे कि आज विश्व ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और उसका उपयोगिता भारत में नहीं विश्व में उसका कैसा हो, एक आतुर भाव से
भारत की ओर देख रहा है और केवल इसी के इंतजार कर रहा है कि भारत का ग्रीन हाइड्रोजन का पॉलिसी कैसा हो। लेकिन मुझे अभी आज बताते हुए मुझे खुशी लगता है कि मिशन ग्रीन हाइड्रोजन की कई दिनों के अंदर ही एक मिशन डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार उसको रोल आउट कर रहा है और उस मिशन डॉक्यूमेंट के अंदर कैसी उसको उत्पादन हो और कंजम्पशन ऑब्लिगेशन रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर, स्टील, हेवी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक इंडस्ट्री और शिपिंग के अंदर समावेत होकर के एक तरफ ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन साथ साथ उसका डिमांड भी हो, इस दिशा में भारत सरकार उसका मिशन डॉक्यूमेंट्स आने वाले कई दिनों में इसको कर रहा है। आज का दिन में यदि अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने देखा गया तो काफी ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है कि हमारा जो एनर्जी हम लोग उसके लिए जो उपयोग करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आने वाला दिनों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो COP26 में जो पंचामृत का जो हमको दिया है, उस दिशा के अंदर आने वाला 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल का 500 गीगावाट की उत्पादन करने हमारा लक्ष्य भी है और अभी 2022 तक 175 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल की एनर्जी हमने उत्पादन करने में सक्षम भी हुआ है। तो इसी दिशा में सोलर एनर्जी के लिए बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 7 अप्रैल 2021 को एक पॉलिसी लेकर के आई थी कि भारत के अंदर ही हाई एफिशिएंसी पीवी मॉडल्स इंक्लूडिंग वेफर, सेल्स, सारों का यहाँ उत्पादन हो। तो उसके लिए पिछला बजट के अंदर 4050 करोड़ की उसके लिए लागत रखा गया था। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि 3 सक्सेसफुल बिल्डर्स को ऑलरेडी हमने लेटर ऑफ इंटेंट हमने इश्यू कर दिया है और 2022 का बजट के अंदर वित्त मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश के अंतर्गत 19,500 करोड़ रुपया उसको लागत रखा है कि आने वाला 4 या 5 साल के अंदर सोलर एनर्जी का मॉड्यूल्स, वेफर्स सारे इंक्लूडिंग जो प्रोडक्शन है करीब 50 गीगावाट की उत्पादन भारत में ही बने, ताकि 2014 में हम देखते थे प्रति यूनिट 7 रुपए से ज्यादा हमको मिलता था। लेकिन आज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हम जब भी बिडिंग वगैरह करते हैं तो 1 रुपए 99 पैसा की बिडिंग की कॉस्ट आ रही है। ये दर्शाता है कि भारत सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन के अंदर काफी तेजी से बढ़ रहा भी है और उसका एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है और उसका कम से कम कीमत में एनर्जी का परचेसिंग का भी अग्रीमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल में हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कॉस्ट कम हो जाएगी। और जब हमारा जब मीटिंग के अंदर चर्चा चलती है तो आने वाला 2 साल मतलब हमारा भारत के 24-25 तक हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के हमारा लक्ष्य है। तब तक आज जो विश्व के अंदर केवल ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइजर की टेक्नोलॉजी 10 गीगावाट की एफिशिएंसी से बनी हुई है, लेकिन भारत की पोटेंशियल और भारत की कमिटमेंट और कन्विक्शन को देख करके विश्व ने कम से कम 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर की कैपेसिटी की टेक्नोलॉजी लेकर के बनाने में बहुत लोग उसको आगे आ रहे हैं। तो मैं आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, IIT दिल्ली और फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा हम लोग कौन सा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो और अडॉप्शन हो, उसी दिशा में हम लोग यदि अगर
तेजी से काम करे तो निश्चित रूप में भारत के अंदर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम लोग सीज कर सकते हैं, उसको उपयोग हो सकती है। और विश्व आज भारत के और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन के मिशन के लिए देख रहा है कि निश्चित रूप में ये एकमात्र भारत का सामर्थ्य है कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन में हम लीडर बन सकते हैं। और निश्चित रूप में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में भारत ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में वर्ल्ड लीडर बनेगा। यही मैं बोलते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मेरे 2 बात मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your great knowledge with us. Thank you very much. Now I take the privilege to request our Honorable Chief Guest, Dr. Mansukh Mandaviya, sir, Honorable Minister of Chemical and Fertilizers and Health and Family Welfare, Government of India, to address the young delegates and motivate them by his words of wisdom. Please, sir. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग द्वारा ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन एमोनिया के लिए 2 दिन के सेमिनार के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित जिन्होंने विस्तृत रूप में ग्रीन हाइड्रोजन और उसके बारे में सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार क्या कर रही है, ये विषय पर अपनी बात रखी। ऐसे हमारे स्टेट मिनिस्टर खुबा जी, प्रोफेसर ए.के. गांगुली जी, हमारे फर्टिलाइजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के.एस. राजू जी, अनिल सरोहा जी, सभी उपस्थित स्टूडेंट, फैकल्टीज और इंडस्ट्रीज के लीडर लोग, अभी हम ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया के विषय पर 2 दिन के लिए डिस्कशन करने के लिए इस सेमिनार के माध्यम से मिले हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ IIT की फैकल्टीज भी है, स्टूडेंट भी है और इंडस्ट्रीज भी है। देश को आगे बढ़ना है या तो रिसर्च सेक्टर में, प्रोडक्शन सेक्टर में हमें इनोवेशन करना है, डेवलपमेंट करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो बहुत आवश्यक है। केवल एक साइड में गवर्नमेंट सोचेगी कि हमें ये करना है, हम वहां एक अच्छी पॉलिसी बना देंगे, कोई बिल पास कर देंगे, तो क्या अचीवमेंट होगा? केवल इंडस्ट्री चाहेगी कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और हमें करना है, तो ये संभव नहीं होगा। ऐसी इंस्टीट्यूट शायद कभी सिलेबस के माध्यम से कोई नई टेक्नोलॉजी पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो केवल इंस्टीट्यूट के लेवल पर प्रयास होंगे तो हम कुछ गोल को अचीव कर पाएंगे क्या? मैं मानता हूं कि इंडस्ट्रीज, एकेडमिया और गवर्नमेंट तीनों लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेमिनार तो आज से नहीं, सालों से होता है। रिसर्च आज से नहीं, दुनिया में रिसर्च हो, रिसर्च के बाद ऐसे सेमिनार के माध्यम से हमें डिबेट करना, डिस्कशन करना, ये होता ही रहा है। लेकिन ये देश में जो पोटेंशियल है, इतने पोटेंशियल को हम हार्वेस्ट नहीं कर पाए हैं। ये देश में कभी ब्रेन पावर की कमी नहीं थी, नहीं है। ये देश में मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, नहीं है। ये देश में एंटरप्रेन्योरशिप कभी कम नहीं थी, नहीं है। यही हिंदुस्तान है। यहां के लोग और यहां का साइंस एक समय में इतना डेवलप था ऐसा नहीं। उसका इतिहास और उसका डॉक्यूमेंट आज हमारे सामने मौजूद है।
इंडस सिविलाइजेशन से आप बात करें तो इंडिया में आज धोलावीरा लोथल दुनिया का सबसे पुराना डॉक आज विश्व में कहां भी विद्यमान है तो ये इंडिया में गुजरात में लोथल में है। और धोलावीरा साइड जाके देखो, हमारा साइंस आपको वहां दिखाई देगा। अभी वर्तमान समय में हम वाटर क्राइसिस के संदर्भ में बात करते हैं और कहते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। 5000 साल पहले वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया गया था आप धोलावीरा में जाके देख सकते हो। अभी हम सिटी प्लानिंग की बात करते हैं, इट्स वन टाइप ऑफ साइंस। अब सिटी प्लानिंग देखना है तो धोलावीरा जाके देखो, 5000 साल पहले उन्होंने ट्रॉमा वाटर मैनेजमेंट कैसे किया था, सिटी प्लानिंग कैसे किया था, वहां है। इतना ही नहीं, ये धोलावीरा के बाउंड्री पर एक फोर्ट बना हुआ है, आज भी है। हम कहते हैं कि लाइमस्टोन को 600 सेंटीग्रेड हीट ट्रीटमेंट करके ग्राइंडिंग करके थोड़ा सा फ्लाई ऐश ऐड कर दे तो सीमेंट बन जाती है और उसकी आयुष्य 100 साल की है। ये सब कंस्ट्रक्शन सीमेंट से हुआ होगा। दोस्तों 5000 साल पहले हम इतना सभ्य थे, हमारा साइंस इतना डेवलप्ड था, इंडिया में ब्रेन पावर ऐसा था, एक फोर्ट की बाउंड्री पर मड से प्लास्टर किया है। आज जाके देखो वैसा ही वैसा है। ये साइंस इंडिया में था। मैं मानता हूं कि इंडिया के पास ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अपार अपॉर्चुनिटी है। 7500 किलोमीटर कोस्टल लाइन है, विंड फ्लो मिलता है, विंड एनर्जी वहां से उपलब्ध होगी। ये देश में 365 दिन में से 300 दिन आपको फुल टाइम देश के कोई भी भाग में आपको सन मिलता है। ये दुनिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंडिया में है। आपके पास गुजरात में कच्छ, राजस्थान में रेगिस्तान, सारा क्षेत्रों में फर्टाइल लैंड नहीं है। वहां सोलर के लिए अपार अपॉर्चुनिटी है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। ये देश में वेदर सिस्टम, वेदर उसके अनुरूप है, लेकिन ये सब तो है, उसको हम हमारे डेवलपमेंट में, हमारे ग्रोथ में कैसे उपयोग करें। दोस्तों सनराइजिंग सेक्टर को आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक होता है। एक कंपटीशन का समय है और कंपटीशन आज नहीं सदियों से होती है, और कंपटीशन में जो आगे निकल जाते हैं उसको सर्वाइव करने का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा नेचुरल जस्टिस बताते हैं। आपको सर्वाइव करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना है, तो आवश्यक है कि आपको आगे रहना होगा। आगे रहने के लिए दुनिया में जो सनराइज सेक्टर है, इस सनराइज सेक्टर को आइडेंटिफाई करके उसके पर काम करना आवश्यक होता है। मोदी गवर्नमेंट की यही विशेषता है भाई, हम वही करते हैं। क्या करना चाहिए, और नीति कभी, पॉलिसी कभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। ये देश में यही हुआ है, सरकार बनती थी 5 साल के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि फिर हमें चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए 5 साल के लिए ही प्लानिंग होता था। जी नहीं, 5 साल से प्लानिंग से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करना होगा, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करना होगा। इसलिए वर्तमान समय में देश आजादी का 75 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और जब हम देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब सरकार सोचती है अमृत काल का विजन तैयार हो। अमृत काल का विजन यानी कि 25 साल के बाद देश आजादी का 100 वर्ष मनाएंगे, तब देश को हमें कहां ले जाना है, हमारा हर सेक्टर कहां होना चाहिए। और एक बार दिशा निश्चित हो जाती है ना, पाथवे तैयार हो जाता है, तो चलना सरल हो जाता है। सरकार कोई भी हो, पाथ तय हो गया, उसके पर वो आगे चल पड़ेंगे। और इसलिए हमने कार्य योजना बनाई है, उसका एक पार्ट है ग्रीन हाइड्रोजन। मोदी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ये तय किया है। और जब देश के लिए काम करना होता है ना, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन करना होता है, तब रिस्क भी करना होता है। मुझे पता है, मैं गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मैं विधायक हुआ करता था, और उस वक्त
सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाना था, और सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाना था। ऐसी स्थिति में उसको गवर्नमेंट सोलर कंपनी के साथ एग्रीमेंट करे तो वो मैन्युफैक्चरिंग करे, उसको एश्योर्ड बिजनेस कोई नहीं देखेंगे तो कोई इंडस्ट्रीज आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसको सपोर्ट करना आवश्यक होता है। वैसी स्थिति में 11 रुपीज, आज जो 195 पैसे की बात कर रहे हैं ना, 2 रुपीज पर यूनिट की बात हो रही है, वो 11 रुपीज पर यूनिट मोदी जी ने कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया था कि आप रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करो, आप सोलर लगाओ, हम अब 11 रुपीज पर यूनिट प्रोक्योरमेंट करेंगे। किया, आज तब जाके गुजरात से होके सारे देश में ग्रीन एनर्जी की बात होना शुरू हुई है, तब जाके रिन्यूएबल एनर्जी आगे बढ़ी है, तब जाके हम दुनिया को जाके बोलते हैं कि 500 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक हम देश में इंडिया प्रोड्यूस करेगा। उसके लिए इनिशिएटिव लेना होता है। ये ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया आज हमारे देश में फ्यूल नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है। कार्बन हम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, फ्यूल से हम कार्बन बनाते हैं, कार्बन से एनर्जी क्रिएट करते हैं। हमारे पास पानी की कमी नहीं है, समुद्र भी है, ये देश में इतनी बड़ी नदियां भी है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए? इलेक्ट्रोलाइजर से हम कैसे हाइड्रोजन को अलग करके एनर्जी का प्रोडक्शन करें? टेक्नोलॉजी शायद अभी महंगी होगी तो होगी, सरकार ने तय किया है कि कोई भी चीज जब नहीं आती है तो महंगी होती है स्वाभाविक तौर पर, बाद में उसके लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, प्लांट धीरे धीरे वायबल होता है और बाद में एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाती है, तब जाके वो सर्वाइव कर जाता है। तो जब न्यू इनिशिएटिव लेने के लिए जा रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, थोड़ी महंगे है, सरकार ने तय किया है कि महंगे है तो है, हम उसके लिए इंसेंटिव देना पड़े, सब्सिडी देनी पड़े तो दे देंगे, लेकिन हम देश में ही एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। ये इनिशिएटिव के आधार पर ग्रीन हाइड्रोजन का कंसेप्ट लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे फर्टिलाइजर प्लांट में एमोनिया चाहिए, डीएपी बनाना है, एमोनिया चाहिए, सभी जगह के लिए, सभी चीज के लिए एमोनिया चाहिए, और एमोनिया में इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और समय पर हम बैलेंस नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो श्रीलंका की जो स्थिति हुई, ये स्थिति कोई भी देश की हो सकती है। इसलिए हमें आत्मनिर्भरता के साथ देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, एनर्जी इज अ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर कंट्री, ये हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। बिजली नहीं प्रोडक्शन हुआ तो, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हम कल्पना नहीं कर सकते हम क्या कर पाएंगे। और इसलिए ऐसे सनराइजिंग सेक्टर को आइडेंटिफाई करके, एक इंडिया की विशेषता है, शुरुआत में महंगा होगा तो होगा, लेकिन हमारी यही विशेषता है कि दुनिया में सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग करके क्वालिटी सप्लाई दुनिया को कैसे देना, ये इंडिया की हमेशा एक्सपर्टाइज रही है। आप फार्मा सेक्टर देख सकते हो, माई सेल्फ लुकिंग फार्मा मिनिस्ट्री ऑल्सो, फार्मा सेक्टर देख सकते हो, आज दुनिया में हमारी कंपटीशन में कोई कंट्री नहीं खड़ा है। जेनेरिक मेडिसिन आज दुनिया 5 टैबलेट लेती है, तो उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनेरिक मेडिसिन है, टैबलेट है। सस्ता एफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की एक्सपर्टाइज है। धीरे धीरे हम ऐसे सेमिनार के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से इंडस्ट्रीज, एकेडेमिया, साथ में गवर्नमेंट, सब लोग साथ में मिलके क्या करना चाहिए, केवल मीटिंग करके चले जाए ऐसा नहीं, उसके पार एक पेपर निकलना चाहिए, बुलेट पॉइंट निकलना चाहिए, और एक गवर्नमेंट के सामने आना चाहिए। हम तो यहाँ एक इनॉग्रेशन सेशन में भाषण देके चले जाएंगे, उसके बाद जो यहाँ आपका आउटपुट निकले, हम इंडस्ट्रीज, हमारा एक्सपर्ट, हमारे स्टूडेंट, हम सब लोगों ने साथ में मिलके ये 4 पॉइंट आइडेंटिफाई किया है, उसके ऊपर सरकार विचार करे, ये आवश्यक होता है। मैं ये भी मानता हूं कि एक बार इस दिशा में काम चालू हमारे लोग कर देते हैं तो हम अचीवमेंट अवश्य प्राप्त कर ही सकते हैं। और दोस्तों,
मेरी अपेक्षा है कि जिस तरह से देश बदल रहा है, जिस तरह से देश ने आगे बढ़ना शुरू किया है, उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि हम सब लोगों का दायित्व है, हम जो भी काम करें ना, एक काम में नेशन फर्स्ट की अवधारणा को हमें ऐड करना है। मैं कुछ कर रहा हूं, मैं इंडस्ट्रीज चला रहा हूं, मैं देश के लिए चला रहा हूं, मैं फैकल्टीज हूं, मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा पढ़ाऊंगा देश के लिए एक अच्छे नागरिक तैयार हो। और जब स्टूडेंट है उसके मन में भाव होना चाहिए, मैं ऐसा कुछ करूं, मैं ऐसा पढ़ूं, मैं ऐसा रिसर्च में, स्टार्टअप में रुचि लूं जो भविष्य में मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा। मैं मानता हूं कि कोई भी देश को आगे बढ़ने के लिए देश के प्रति, नेशन के प्रति कमिटमेंट बहुत आवश्यक होता है। और देश के हर नागरिक, मेरे से लेकर आप तक, सभी के मन में एक बार ये भाव निर्माण हो जाएगा तो हमें आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। यही हिंदुस्तान है जो सदियों पहले विश्व गुरु था। जो था उसका मतलब यह है कि क्षमता हमारे में है। हम पुरखों से प्रेरणा लेते हैं। हम कहते हैं कि उसके फादर फ्रीडम फाइटर थे, तो 3 पीढ़ी पहले उसके फोर फादर फ्रीडम फाइटर थे। आज भी हम उसकी इज्जत करते हैं, उसके जनरेशन की इज्जत करते हैं। वो तो अच्छा ही होगा, या तो वो यही करेगा, क्योंकि उसके पुरखों ऐसे थे, उसके फोर फादर ऐसे थे। वैसे ही हम हमारे सदियों पुरानी हमारी सिविलाइजेशन से प्रेरणा ले कि हम सक्षम है, सब कुछ कर सकते हैं, इंडिया ही कर सकता है, इंडिया ने ही करके दुनिया को दिया था। ये भाव देश के हर नागरिक में पैदा हो जाए, मैं मानता हूं कि फिर से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, मैं आज के इस सेमिनार से अपेक्षा करता हूं कि हमारे ग्रीन एनर्जी में, ग्रीन हाइड्रोजन में आज का सेमिनार हमें कुछ ऐसा बिंदु को आइडेंटिफाई करके देंगे जो इस सेक्टर को आने वाले दिनों में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much for your kind words. I would now like to request our Director, Professor Ashok K. Ganguly, sir, to present a memento to our Honorable Chief Guest, Dr. Mansukh Mandaviya, sir. Thank you, sir. Now, I would like to request you, sir, to present a memento to Shri Bhagwanth Khuba, sir. Now, I would like to call Professor Anil K. Saroha, sir, Organizing Secretary and Head, Department of Chemical Engineering, for vote of thanks. Honorable Dr. Mansukh Mandaviya, sir, Minister for Chemical and Fertilizers and Health and Family Welfare, Government of India. Respected Shri Bhagwanth Khuba ji, Minister of State for Chemical and Fertilizers and New and Renewable Energy, Government of India. Professor Ashok Ganguly, Director in charge IIT-Delhi. Mr. K.S. Raju, Chairman, Fertilizer Association of India. Our most valued guests, delegates, beloved students, ladies and gentlemen. I deem it a great honor and privilege to pose a vote of thanks on this memorable occasion. On behalf of the organizing committee of the seminar and on my own behalf, I thank Dr. Mansukh Mandaviya, sir, who despite his busy schedule
has found time to grace the occasion and share his thoughts with us today. Thanks, sir. Thanks very much. Sir, we were all inspired by your encouraging words. It was a delight to have Shri Bhagwanth Khuba, sir. Sir, we are grateful to you for accepting our invitation and grace the occasion on the seminar. We are fortunate to have Mr. K.S. Raju, Chairman, Fertilizer Association of India. Sir, we are grateful to you for accepting our invitation and enlighten us on the decarbonization of Indian economy. Thanks to the other distinguished invitees too for accepting our invitation and gracing the occasion. At the home front, I would like to thank our director and IIT-Delhi administration for extending all help in hosting this seminar. Well, ladies and gentlemen, an event like this does not happen overnight. The wheel starts rolling months before. It requires a lot of planning and an eye for details. We are fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues of the Chemical Engineering Department, IIT Delhi, who knew their job very well and are result oriented. I thank you all, my colleagues, and very specially recognize the incredible work that you have done. Thanks very much to all my colleagues in the department. All the credit goes to you for doing a wonderful job. You have made this event possible. And if there is any inconvenience to any of our esteemed guests, I take responsibility and I sincerely apologize for the same. However, we will do our best to make your stay successful, useful, enjoyable, and unforgettable. We hope that you have meaningful deliberations for the next 2 days. We would also like to thank Indian Institute of Chemical Engineers, Northern Regional Center, and Fertilizer Association of India for their untiring efforts in conducting this seminar. We thank the member of media for evincing interest in covering the event. This inaugural session is being streamed live on YouTube. Thank you all for sparing your valuable time by attending the function and making it a success. Now we will have the national anthem and then we will have a cup of tea which has been arranged in the red square outside the seminar hall. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे